हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉयफुलनेस चाहते हैं। हमारे सब जो फेस्टिवल्स रहते हैं, इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट दैट जॉय। Diwali is the biggest festival, and I am happy that this year, even in US, the postal department has come out with a stamp also on this occasion. Diwali त्योहार भारत में तो होता ही है, यहाँ भी होता है, आप सब लोग बताइए। आप सब लोगों का घर सुख शांति आनंद सुख समाधान इससे भरा रहे, यही हम चाहते हैं। ये सुख शांति कैसे मिलती है? How we get comfort, how we get happiness, how we get the joy? The most common answer for this question will be get more money, get more equipments, get more machines. हाँ जरूर, ज्यादा करके मशीन्स आए, सुविधाएं बढ़ गई, the life became comfortable. But is that money is the only reason for comfort and only source of comfort? No. The millionaires also can't sleep well. हम लोग सुख शांति से सो जाते हैं 6 घंटा 8 घंटा। सुख चैन से सोना ये भी कोई और बात रहती है। सबको ये सुख नहीं मिलता है, पैसे से तो नहीं मिलता है। और पैसा ये चीज ऐसी है कि जितने मिली उतनी कम है, और लगता है और कमाऊं, और काम करूं, और कुछ करूं, और कुछ करूं। तो सुख शांति समाधान कैसे मिलती है? It is not something which we get from the outer world. It is something which is deep into ourselves, in our heart, in our mind, in our thinking. Even a poor person having a meager income, he must be enjoying his life, he must be happy. कुछ मिला दो बार खा लिया, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, despite becoming millionaires, they don't get the peace of mind, the comfort in living, the joy of this world. We can't enjoy it. That way we are very lucky, we are fortunate. हम जो कमाते हैं उसमें हम आनंद से त्योहार मनाते हैं, और वो हमारे सब त्योहार भी कैसे होते हैं? जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, दिवाली है। हमारे त्योहार के साथ हम लोग सुमिरन करते हैं उनकी चरणों का, भगवान की चरणों का। सुमिरन क्या होता है? It is the acknowledgement of the supreme power. We are not the supreme power. Whatever we may get, $1 million a month, but we are not the supreme power. Nobody in this world. Only He is the supreme power. May it be Lord Ganesha, may it be Lord Sri Ram, Sri Vishnu, Devi Mahalakshmi ji, or maybe Jesus Christ, or maybe Allah, or whatever they call it. When we acknowledge their supreme power, and when we say that whatever I am doing, it is for my joy, I must do it sincerely, honestly, and get whatever emoluments I get in turn. The outcome of my striving, outcome of my hard work. Rest of the things we may leave it there.
महाराष्ट्र के संत तुकाराम करके सेंट थे। संत तुकाराम ने कहा उनके ऊपर सब छोड़ दो, अपना काम ठीक से कर लो, ऑनेस्टी से कर लो, सिंसियरली कर लो, बाकी सब उनके पास छोड़ दो। He is the supreme power, he will take care of all the things going on. संत मीराबाई का मैंने जो पद अभी गाया, राम रतन धन पायो, उनके लिए राम का नाम यही रतन था मीराबाई के लिए। मीराबाई ऐसे तो कृष्ण भगवान की भक्त है। संतों के लिए कोई भेदभाव नहीं रहता, राम हो, श्री विष्णु जी हो, श्री देवी हो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर उन्होंने कहा है, हरख हरस जस गायो, गायो यानी सिंह, जैसे यानी सक्सेस। Whatever success we get out of this world after our honest and sincere work, that is our achievement. And after achieving something, we must happily sing and always acknowledge that He has given everything to everybody. Even an ant in the world gets her food. Even big animals like elephants or whales, they also get their food. Who arranges that? Of course, He has got some machinery. But हम लोगों की आदत रहती है, whatever done we say, I have done it, I achieved it. I agree that when a person works hard, 8 hours, 10 hours, 14 hours a day, he gets something out of it. But also he must learn how to take happiness out of that. नहीं तो बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन खुशियां नहीं रहेगी. No peace of mind, no comfort of living. That is of no use. So whenever we work, we should always keep in mind that we have to work sincerely, honestly. We have to work hard. We have to do whatever work is to the best of our ability. And at the same time, we must always have सुमिरन, उनका नाम यहाँ होना चाहिए कि उनकी कृपा से, because of His kindness we are getting everything. ये दिवाली का अवसर है, आज धनत त्रयोदशी कल हो गई, आज नरक चतुर्दशी यानी नरकासुर वधन का ये दिन था. धन्वंतरी जयंती भी है. धन्वंतरी ये कौन है? तो जो सागर मंथन हो गया उसमें 14 रत्न मिले. जिथे तुम्ही आता उभे होता ना, माझा काळा कोट लक्ष्मी लावलाय खुर्चीला. कौस्तुभ पारिजातक सुधा धन्वंतरी चंद्रमा. पहला नाम लक्ष्मी जी का है. लाल पर्स. तो लक्ष्मी जी का पूजन है. आज नरक चतुर्दशी का दिन है, का धन्वंतरी जी की जयंती थी. देखो अपने दिवाली ये सन, ये अपना जो त्योहार है, जो 4-5 दिन कंसेक्यूटिव डेज रहते हैं. So we must always celebrate Diwali. We must forget all our worries, forget our sorrows, because everything, the time takes its own course and the problem gets solved. So that संतों का यही कहना है कि जो करना है तो काम ठीक से कर लो, work well and at the same time worship well. Work and worship together. So that was the message given by Mirabai in this composition. So that was half the part of Kirtan. Usually we perform it for
1.5 hours, 2 hours, it goes 2.5 hours also sometimes. And there is lot of time to say something, what is there in Jnaneshwari, what is there in Dasbodha, what is there in Bhagavad Gita. There is lot of time. But I was given a little time. So I am concluding this half portion. Philosophy of life, that is Naradiya Kirtan. This has started by Narada. So today's this half the portion is finished. Now we will have some chanting and then I'll tell some stories. Please sing with me. Shri Krishna Govinda Hare Murare. Shri Krishna Govinda Hare Murare. Vedasa Narayana Vasudeva. Narayana Vasudeva. Jaguna Damodara Vishwanatha. Jaguna Damodara Vishwanatha. Kunda Vishnu Namaste. Kunda Vishnu Namaste. Shri Krishna Govinda Hare Murare. राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवती महालक्ष्मी माता की जय। मंगल मूर्ति मोरया। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनमें लक्ष्मी जी का नंबर पहला है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुधा। हम लोग जो विवाह के समय हम लोग जो मंगलाष्टक करके गाते हैं, धन्वंतरी चंद्रमा गावो यने कामधेनु का भी आगमन उससे हो गया था। तो ये लक्ष्मी प्राप्त हो गई महाविष्णु के लिए। लक्ष्मी बहुत चंचल है। There is difference between wealth and money. जो अच्छे मार्ग से आती है that is wealth, prosperity, bounty. Money is not the wealth. Money में black money भी होती है, black लक्ष्मी कभी होती नहीं। लक्ष्मी जी जो अच्छे काम से फ्रंट डोर से जो आती है वो लक्ष्मी है, प्रॉस्पेरिटी है। बैक डोर से आता है वो पैसा है, काला पैसा, काला धन, ब्लैक मनी, दैट इज डिफरेंट। वी ऑलवेज आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लक्ष्मी जी। और वो कैसी है? चंचल है। तो भगवान विष्णु ने वो लक्ष्मी जी को अपनाया था, उनको अपना कर दिया। हम लोग वेद के लिए दौड़ते हैं पीछे, पैसे के पीछे दौड़ते। ये लक्ष्मी जी थी, वो खुद स्वयं उन्होंने विष्णु जी को पसंद किया था, उनसे शादी कर ली थी। और इतना ही नहीं, वो उनके चरण के पास बैठी।
उनकी सेवक होकर रह गई थी। और कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी है द बिगेस्ट, तो हम लोग जिनको कहेंगे डॉक्टर या आरोग्य विशारद। हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूड वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जितना हम हमारे पैसे का ख्याल करते हैं, वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का ख्याल करते हैं, उतना ही ख्याल हमें हेल्थ का करना चाहिए। धन्वंतरी जी को स्मरण करना चाहिए। अपना आरोग्य, we must take care of our health. That is the message from this धनत्रयोदशी। मुझे याद है हमारे देहात में ये धनिया और गुड़ उनका मिश्रण खाया जाता है ये सीजन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर दिस विंटर। और क्या, भगवान विष्णु जो 8वें अवतार में पधारे तो वो भगवान गोपाल कृष्ण रहे। और भगवान का भक्तों के लिए क्या है, प्रॉमिस क्या है? Yes, committed in Bhagavad Gita. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ जहाँ अधर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, तो भगवान कुछ पधारते हैं और संकट दूर कर देते हैं, भक्तों को कंफर्ट दिलाते हैं, हैप्पीनेस दिलाते हैं, सुख शांति समाधान आनंद देते हैं। जब भगवान ने कंस को मारा, जरासंध को पांडव के हाथ में मार दिया, भीमसेन के हाथ। और इस भारतवर्ष में नरकासुर नाम का एक असुर था। उन्होंने 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी करके रखा था और वो रहता था कहाँ? प्राग ज्योतिषपुर, जो असम में है, असम मणिपुर में, भारत के ईस्ट मोस्ट जो पार्ट है उसमें है, ईस्टर्न पार्ट। और भगवान गोपाल कृष्ण तो द्वारका में रहते थे, सोने की द्वारका उन्होंने तैयार की थी। उनको कोई जरूरत नहीं थी उनसे जाके लड़े, लेकिन भगवान तो ऐसे होते जो दुश्मन को, जो अत्याचारी को उसके गली में जाके उसका विनाश करते हैं। भगवान द्वारका से निकले और असम मणिपुर तक गए, प्राग ज्योतिषपुर। साथ में रुक्मिणी जी स्वयं थी, लक्ष्मी जी। कौन कहता है कि स्त्रियां लड़ाई में नहीं जाती? अभी है ना, अभी एयरफोर्स में अभी लेडीज ऑल्सो हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज इन एयरफोर्स ऑल्सो, नॉट ओनली आर्मी। तो ओल्डेस्ट एग्जाम्पल वॉज लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी के रूप में भगवान के साथ गई थी नरकासुर से लड़ने के लिए और उनका सहायक किया था। वो नरकासुर था, उससे घमासान लड़ाई हो गई और अंत में सुदर्शन चक्र के आघात से वो नरकासुर को मार दिए थे। और वो जो 16 सहस्त्र जो प्रिया थी, उनको भगवान ने अपना लिया, अपना नाम दे दिया, उनके स्वामी बने। भगवान के ये जो प्रॉमिस रहते भक्तों के लिए कि मैं आ जाऊंगा, यू कॉल मी एंड आई विल बी देयर। किसी के न किसी के रूप में भगवान हाजिर हो जाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दे प्रोटेक्ट द डिसिपल्स।
अपने भक्तों की रक्षा करते थे। यही वो दिन था, इसलिए वो नरक चतुर्दशी बोलते हैं। वो नरकासुर ने मरते मरते भगवान से एक वरदान दे दिया। वो बोला इस दिन जो लोग सुबह जल्दी सूर्योदय के पहले बिफोर सनराइज whoever gets up इस बार और भगवान का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, वो दीर्घायु पा जाएंगे। They will live long। तो मैसेज ये है कि दिस इज विंटर। विंटर में अच्छा नहीं लगता है जल्दी उठना, लेकिन मैसेज तो ये है कि ये सीजन में भी जल्दी से जल्दी उठ जाओ और अपना काम शुरू कर दे। We should not be lazy even because it is winter and it is cold. So that was the biggest message for this occasion and this day. और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो सब कुछ रिलीजन के साथ जुड़े हैं, धर्म के साथ, धर्म ग्रंथों के साथ और संतों के वचनों के साथ। क्यों? क्योंकि हम सामान्य लोग जो है, कॉमन मैन, he gets the required message, he gets the required guidance, what to do and what not to do in life for ultimate happiness, comfort, joy, and all types of goodness of life. So that was the message from all the saints. बहुत बहुत धन्यवाद। I conclude here. I wish all of you all sorts of wealth, health, prosperity, bounty, and whatever you have good dreams, they may come true. That is my prarthana to God. धन्यवाद, नमस्कार।